علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، بولیے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ توجہ چاہتا ہوں، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور جب مصطفیٰ لاجواب ہیں تو مصطفیٰ کی فیملی بھی لاجواب ہے نا، مصطفیٰ کا خاندان بھی لاجواب ہے۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مولانا ہاشم صاحب جو نقیب اہل سنت ان کی بستی کے رہنے والے ہو، وہ بڑی محنت کرتے ہیں نظامت میں، اور ماشاءاللہ آپ کی بستی کا دور دور تک شہرہ بھی ہے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا آپ سنتے ہیں۔ لیکن میری بس ایک شرط اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، انشاءاللہ دل کے کانوں سے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں جو پیغام، جو میسیج ہم کو دیا ہے، اس میسیج کو ہمیں اخذ کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے۔ وہی میسیج مجھے آپ تک پہنچانا ہے اور اپنی بات ختم کر لینی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے سنائیں، صلی اللہ علیہ نبی الأمی جی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیں ذرا، بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے گندگی کو دور کر دیا جائے، اہل بیت اطہار سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے۔ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون سے اشخاص ہیں؟ آپ کے گھر والے کون سے ہیں؟ آپ کی فیملی والے کون سے ہیں؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و حسن و حسین و ابناہما۔ آقا نے ارشاد فرمایا، سنو، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، اور ان سے جتنی بھی قیامت تک اولادیں آئیں گی وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں، ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ دیکھیے، اگر سید ہے اور وہ حد کفر تک نہیں پہنچائے، اس نے کفر نہیں کیا، تو اس کی تعظیم واجب۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی تعظیم واجب۔ اگر سید ہے اور اس نے کفر نہیں کیا، اس کے نیچے کے درجے میں وہ چاہے کہیں تک پہنچ جائے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، صرف تعظیم واجب ہے، اتباع واجب نہیں۔ اتباع، اس کو فالو کرنا یہ ضروری نہیں، اس کے پیچھے چلنا یہ ضروری نہیں۔ مطلب یہ ہے، اگر سید ہے اور وہ گناہگار ہے تب بھی اس کی تعظیم واجب، اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے تب بھی تعظیم واجب، لیکن اس کی اتباع کرنا واجب نہیں۔ اگر وہ غلط کام کا حکم دے تو حکم یہ نہیں کہ سید صاحب ہیں جو کہیں گے وہ مانا جائے گا، نہیں۔ جو پیغام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، سید کی تعظیم واجب ہے، اتباع واجب نہیں۔ اگر سید ہے، خیر عامل ہے، عمل نہیں کرتا ہے اور غلط کام کا حکم دے رہا ہے تو اس کی تعظیم تو واجب ہے لیکن اتباع نہیں کی جائے گی۔ کوئی سید ہے، پیر بن کے آیا ہے، تو اگر اس کی تعظیم تو کی جائے گی لیکن اس کے قول پر عمل نہیں کیا جائے گا، اگر شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اتباع کے لیے ضروری یہ ہے، اب اس کسی کو فالو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے، کسی کو اپنا رہنما بنانے کے لیے ضروری ہے، نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ کسی کو جب آپ اتباع کرو گے، جب کسی کو فالو کرو گے تو نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ یہ دیکھ لو قرآن کے مطابق چلنے والا ہے یا نہیں، حدیث پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، شریعت پر چلنے والا ہے یا نہیں۔ تو ضروری یہ ہے جس کی اتباع کی جائے وہ عالم دین بھی ہو اور شریعت پہ عمل کرنے والا بھی ہو، قرآن کو حلال حرام کو حرام سمجھتا ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ غیر سید ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ غیر عالم ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی صحیح راستہ دکھانے والا ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی اور اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
सैयद मोहम्मद अफरोज मियां साहब, सैयद अफरोज मियां साहब, नारे तकबीर। हाँ, ये समझ में आ गया आपके? इत्तिबा करने के लिए, फॉलो करने के लिए आलिम होना जरूरी, अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हजरत पर चलने वाला जरूरी। जिसको फॉलो कर रहा है ये देख ले कि शरीयत की बात बता रहा है या नहीं बता रहा है। अब आप कहोगे ये किसने सिखाया है? मैं बताऊं किसने सिखाया? मैं चल के बोलिए, मैं बताऊं किसने सिखाया है? ये किसी और ने नहीं सिखाया है, ये फातिमा के लाल करबला के हुसैन ने सिखाया है। ये फातिमा के लाल करबला के हुसैन ने सिखाया है। अगर आम मस्जिद का इमाम देखो, एक पैगाम तुम्हें देना चाहता हूं, अगर आम मस्जिद का इमाम देखो तो ये देखते हो कि दाढ़ी पूरी है या नहीं। अगर आम मस्जिद का इमाम देखो तो ये देखते हो कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये चौराहे पे बैठता है या नहीं बैठता है। अगर आम मस्जिद का इमाम देखो तो ये देखते हो कि उसकी उंगलियां टिक रही हैं या नहीं टिक रही हैं। आप मस्जिद का इमाम देखो तो उसमें खूबियां तलाश करते हो, आप मस्जिद का इमाम देखो तो उसमें अच्छाइयां तलाश करते हो, और करनी भी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, ये इमामत का मनसब इमामत सुगरा है। जो बताना चाहता हूं ये क्या है? इमामत सुगरा, छोटी इमामत। छोटी इमामत के लिए आपको इमाम बिल्कुल पाक साफ सुथरा शरीयत पे चलने वाला चाहिए। एक साहब का फोन आया, हजरत इमाम साहब बीड़ी पीते हैं, क्या नमाज हो जाएगी? हजरत इमाम साहब बीड़ी पीते हैं, क्या नमाज हो जाएगी? मैंने कहा भाई तू शराब की हट्टियों पे जा रहा है, तो शराब के नापाक घूंटों से अपने लबों को नापाक कर रहा है और इमाम के पीछे पड़ा है। इमाम में खूबियां देखनी चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन याद रखो ये मनसब इमामत सूरा कहलाता है। लेकिन जिसे तुम पीर चुनते हो, जिसे तुम अपना रहनुमा बनाते हो, वो अगर बाल लंबे लंबे रख ले, हरे पीले चुप्पे कुप्पे में आ जाए, 10 उंगलियों में अंगूठी पहन रहा है, नमाज से दूर है, रोजों से दूर है, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, चाहे वो एक बात याद रख लो, चाहे किसी भी ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक रखने वाला हो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इमाम चुनने के लिए तुम बहुत खूबियां ढूंढते हो, लेकिन जिसे पीर चुनते हो, जिसे बहुत अच्छी तरह चुन लेता हो, दाढ़ी रखता है या नहीं है, नमाज पढ़ता है या नहीं है, अगर हाथों में उंगलियां पहने तो तब उसे पीर बनाते हो, अल्लाह ऊपर शरीयत पे नहीं चल रहा है तब उसे पीर बनाते हो, नमाज पढ़ नहीं रहा है तब उसे पीर जनाब बनाते हो। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा जनाब तुम्हारे पीर साहब तो नमाज पढ़ते नहीं है। हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं, अल्लाह हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा भाई कितने पहुंचे हुए हैं? कहा हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा हाँ बहुत पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ इतना है खुद भी जहन्नम में जाएगा और तुझे जहन्नम में पहुंचा के सांस लेगा। ये बहुत पहुंचा हुआ है, खुद भी जहन्नम में जाएगा, अल्लाह अकबर, और तुझे भी जहन्नम में पहुंचाएगा। एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ, अगर पीर देखना चाहते हो, पीर ढूंढना चाहते हो तो करामतें मत तलाशो। अगर पीर देखना चाहते हो तो उसमें ये तरह तरह की प्रोपेगेंडे मत तलाशो। होता क्या है, जब परेशानी आती है तो पीर के पास भाग सकते हैं, और मुरीद क्या चाहता है? हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दें, हजरत कोई ऐसा अमल बना दें कि मेरी बिल्डिंग बन जाए। अरे भाई 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 मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? जरा मचल के बोलिए या हुसैन। माशा, आप हुसैन ही ना, बोलिए या हुसैन। आका हुसैन तो मुर्दों में जान पैदा कर देते हैं, बोलिए या हुसैन। या हुसैन। जिंदा हो जिंदा, सच्चे पक्के हुसैनी हो। मैं एक पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ, वो पैगाम ये है, हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं कहा ठीक है पहुंचे हुए हैं, अल्लाह अकबर, बहुत पहुंचे हुए हैं, नमाज से दूर, रोजे से दूर, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, 10 उंगलियां, 10 उंगलियों में अंगूठी है वो पहनता है, बड़े बड़े बाल वो रखता है। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, और ये भी मत समझना मुझसे किसी ने कहा है, नहीं नहीं, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरी दिली कैफियत है, ये मैं वो बता रहा हूँ जिस चीज की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, तुम इमाम चुनो तो उसमें सारी अच्छाइयां देखो, तुम इमाम चुनो तो उसमें ये भी देखो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका बैकग्राउंड भी देखो। लेकिन जब पीर चुनते हो तो क्यों नहीं देखते? जब पीर चुनते हो तो क्यों नहीं देखते ये आलिम है या नहीं है? जब पीर चुनते हो तो ये क्यों नहीं देखते नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? जब पीर चुनते हो तो ये क्यों नहीं देखते कि इसका बैकग्राउंड कैसा है? जब पीर चुनते हो तो ये क्यों नहीं देखते कि नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है या नहीं रखता है? अल्लाह अकबर। हजरत बहुत पहुंचा हुआ है, मुरीद ये चाहता है हजरत कोई वजीफा बता दे, मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरी इमारत बन जाए। और पीर साहब भी ये सोचते हैं काश कोई मोटी मुर्गी फंस जाए और मेरी बिल्डिंग बन जाए, काश कोई मोटी मुर्गी फंस जाए मेरी बिल्डिंग बन जाए। दोनों का मामला बिल्डिंग पर,
तरक्की पर, पैसे पर, हिदायत पर नहीं। अरे पीर इसलिए नहीं चुना जाता है इमारत बन जाए, पीर इसलिए नहीं चुना जाता है अल्लाह अल्लाह के कारोबार में तरक्की हो जाए, पीर इसलिए नहीं चुना जाता है मेरी शोहरत बढ़ जाए, फिर किस लिए पीर चुना जाता है? पीर तो इसलिए चुना जाता है अगर नमाजी नहीं है तो नमाजी बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है अगर रोजेदार नहीं है तो रोजा रखने वाला बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है अगर माँ बाप का नाफरमान है तो फरमाबरदार बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है अगर इमामों से बदकलामी करने वाला है तो इमामों का फरमाबरदार बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है कि छोटे पर शफकत करने वाला बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है बड़ों की तौकीर करने वाला बन जाए, पीर इसलिए बन जाता है, पीर इसलिए चुना जाता है कि नमाजी बन जाए, पीर इसलिए चुना जाता है कि दाढ़ी पर चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाला हो जाए, पीर इसलिए बना जाता है, पीर इसलिए चुना जाता है दुनिया के गुनाहों से बच के नेक बन जाए, और पीर इसलिए चुना जाता है कि पीर कब्र में भी बचाए और हश्र में भी बचाए। बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर। हजरत बहुत मेहनत से बोल रहे हैं, हजरत की सेहत को ना देखें, तकरीर को देखें, मोहब्बत से नारे लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरेठा के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, ये पैगाम किसी के बाप ने नहीं दिया, ये पैगाम फातिमा के लाल हुसैन ने दिया है, हुसैन ने दिया है। अरे चाहे कितनी बड़ी शख्सियत हो, चाहे कहलाने वाला बादशाह हो, तुम ये है चाहे कुछ भी हो, तो तुम तादाद पर मत जाना, कसरत पर मत जाना। आका हुसैन ने करबला के मैदान में बता दिया है, अगर हाथ देना है तो हाथ देने से पहले देख लो कहीं हाथ उसके नापाक तो नहीं है, कहीं किसी के कत्ल में खून के रंगों में तो नहीं है, कहीं नमाज छोड़ने वाला तो नहीं है, कहीं रोजा तोड़ने रोजे के तर्क तारीख तो नहीं है, कहीं कहीं शरीयत की झज्जियां उखाड़ने वाला नहीं है। ये किसी और ने नहीं सिखाया है, ये करबला के हुसैन ने सिखाया है। अगर अगर शरीयत पे चलने वाला हो उसे आंखों का तारा बना लो, और जो शरीयत से मुखालफत करने वाला हो उसे पैर की नोक से उखाड़ कर फेंक दो। अगर नबी का वफादार हबशा कर रहने वाला बिलाल हो, बचल के बोले जरा, बचल के बोलिए, अगर नबी का वफादार हबशा का रहने वाला बिलाल हो उसे आंखों का तारा बना लो। अगर नबी का गद्दार मक्का में रहने वाला अबू जहल हो तो उसे पैरों की नोक पे उठाकर फेंक दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पीर चुनो, पीर कैसा चुनो? हुजूर गौस, किसी का बाप क्या हुजूर गौसे पाक से बड़ा हो सकता है? कितना बड़ा पीर हो क्या हुजूर गौसे पाक से बड़ा हो सकता है? हो सकता है? हुजूर गौसे पाक बिस्तरों में सोने वाले नहीं थे, गांवों से धड़ियां लेने वाले नहीं थे कि फसल का टाइम आ गया चक्कर लगा लो। मैं कहता हूं पीरों को देना चाहिए, अच्छी बात है, उनका हक है, लेकिन पीर हो शैतान ना हो। मैं खानका से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन हक बात है तो कहकर जाऊंगा, चाहे कोई भी हो। पीर में शर्त यह है, ये देख लो शरीयत पर चलने वाला है या नहीं। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला नरम नरम गरम गरम बिस्तरों पे सोने वाले नहीं थे, बल्कि मदरसे में 11-11 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले थे। कितने? 11-11 सब्जेक्ट मदरसे में पढ़ाते थे। और हुजूर गौसे पाक पढ़ाते हैं, कहते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म दीन सीखता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अबे तुम हमारे यहाँ पढ़ो या किसी के यहाँ पढ़ो, किसी का उस्ताद हाफिज बनाता है, किसी का उस्ताद कारी बनाता है, किसी का उस्ताद मौलवी बनाता है, किसी का उस्ताद आलिम बनाता है, किसी का उस्ताद फाजिल बनाता है, किसी का उस्ताद मुफ्ती बनाता है, किसी का उस्ताद मुहद्दिस बनाता है। लेकिन बाहरे हुजूर गौसे आजम आपकी शान को सलाम, हुजूर गौसे आजम पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, पिलाते। किसी को वली बना दिया, किसी को अब्दाल बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को फर्द बना दिया। अरे नजर डाली, चोर चोरी करने आया, जमाने का कुतुब बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद कारी अफरोज मियां साहब, नारे तकबीर। देखिए एक शेर मेरे भी याद आ गया,
अरे आपकी शान है क्या, आपकी शान है क्या शान मदीने वाले, और तुझ पे कुर्बान हो मेरी जान मदीने वाले। अरे ये दुनिया कुछ कहे लोगो, ये दुनिया कुछ कहे लोगो, अरे मुनव्वर तो सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हारा आशिक सैदा तुम्हीं पर जान दे देगा। बेदार हैं, बोलिए या हुसैन, बोलिए या हुसैन। मैं बता रहा था किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? हुसैन पाक की और उनके बाबा हसनैन करीमैन की। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ये चाहता है कि अहले बैत अतहार से गंदगी को दूर कर दिया जाए, उनसे नापाकी को दूर कर दिया जाए। और अल्लाह ने जिनसे गंदगी को दूर किया हो, जिनसे नापाकी को दूर किया हो, क्या उनकी शान छोटी है? वो कोई दुनिया में कोई और नहीं, वो मुस्तफा का घराना है। वाह वाह सुभान अल्लाह, वो मदीने वाले मुस्तफा के घराने की शान है। अल्लाह अकबर। जिसके बारे में मुस्तफा फरमाए, जो दामाद रसूल हैं, मुस्तफा उस अली के बारे में फरमाए, अली मेरा दुनिया में भी भाई है, अली मेरा आखिरत में भी भाई है। सुभान अल्लाह, चल के बोलिए सुभान अल्लाह। अली मेरे दुनिया में भी भाई और आखिरत में भी भाई। और वो अली जो दुनिया में आते ही अगर अपनी आंखें जब खोलें, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत कर ले, वो अली जिनके बारे में मुस्तफा फरमाए, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। वो अली जिसके बारे में मुस्तफा फरमाए, अली का जिक्र करना इबादत। वाह वाह सुभान वो अल्लाह, अली जिसके बारे में मुस्तफा फरमाए, अली का चेहरा देखना इबादत। और हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर, हजरत अली जहां भी बैठते टिकटिकी बांध के हजरत अली का चेहरा देखते। कौन देखते? हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल चेहरा देखते। किसी ने पूछ लिया, सरकार हजरत अली के चेहरे को इतना क्यों देखते हो, क्या मामला है? सैयदुना सिद्दीक अकबर कहते हैं, मैंने मुस्तफा की जबानी सुना है, अली का चेहरा देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली का चेहरा देखना इबादत है। अल्लाह अकबर। ये शान किसने बताई? ये सैयदुना सिद्दीक अकबर ने बताई, ये सैयदुना सिद्दीक अकबर ने बताई। अल्लाह अकबर। वो हसनैन करीमैन जिनके नाना मुस्तफा, चल के बोले, जिनके नाना मुस्तफा, जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा, जिनके बाप मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, जिनकी माँ फातिमा जहरा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा। कौन फातिमा? वो फातिमा जिसके बारे में मुस्तफा कहे, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फातिमा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और किस दौर में फरमाया? उस दौर में फरमाया जिस दौर में बेटियों को नहूसत और बेबरकती समझा जाता था, जिस दौर में बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाया जाता था, जिस दौर में जिस घर में बच्ची पैदा हो जाए बाप मुंह छुपा के भागता था कि मेरी नाक कट गई है, मेरे घर में बेटी आई है। अल्लाह अल्लाह। उस दौर में जब मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा के घर में बेटियां तशरीफ लाई, एक एक बेटी नहीं बल्कि अल्लाह ने कई कई बेटियों का बाप मुस्तफा को बनाया। वाह वाह बोले सुभान अल्लाह, मुस्तफा चल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, और सुनो लोगों, तुम बेटों पे फख्र करते हो, किसी का बेटा है तो वो कहता है मैं प्राउड फील करता हूँ, किसी का बेटा है तो वो कहता है मैं फख्र महसूस करता हूँ। लेकिन आका ने इरशाद फरमाया, तुम बेटों पे फख्र करते हो, तुम अपने शहजादों पे फख्र करते हो, लेकिन आका इरशाद फरमाते सुनो, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, अरे तुम्हें बेटों पर फख्र है लेकिन मुझे फख्र है तो फातिमा ज़हरा पे है। तुम बेटों को देख के अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, मैं फातिमा को देखता हूँ तो मेरे दिल को करार हासिल हो जाता है, मैं फातिमा को देखता हूँ तो मेरे आंखों को ठंडक मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर।